मैं समझ गया या मैं समझ गया हूँ आपकी बात. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Good morning, sir. Good morning, sir. So today we start with this. No. Yes. So today we have to start with this point. Little bit we discuss about that. What is our system of election regarding general election, the by-election. Today to start with Yes, the sir. electoral constituencies. Electoral constituencies. Clear? Now, so when we talk about the electoral constituencies, की जो सीटें होती हैं, ठीक है? So in that sense, we have to discuss about the percentage of seats regarding this. Now, see this. In our country, इससे पहले जो कल पॉइंट पढ़ाए थे आपको सारे सुनना है? Yes, sir. कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं सुनना है हो? No, sir. No, sir. Now, in our country, we follow an area-based system of representation. Representation कैसे represent होता है? The country is divided into different areas for the purpose of elections. So when we talk about different areas, the different areas regarding with the votes, and the main purpose is related with election. Yes, good morning to all of you. So whether it's a boy or girl, election. Clear? Good morning, sir. Good morning to all of you. सर के स्कूल खुलेगा जल्दी? इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. स्कूल मंडे से खुलने वाला है, लेकिन आपकी क्लास वाला कब खुलेगा ये अभी टाइम है. ठीक है, 2-3 दिन बाद नोटिस कब आएगा? नोटिस आ जाएगा. उसके लिए प्रायर 1 या 2 दिन पहले आ जाएगा. इसके बारे में अभी इस क्लास में थोड़ा कम चर्चा करें. मैंने बता दिया आपको मंडे से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अपर क्लासेस का भी आपसे मतलब बड़ी क्लासेस 9 to 12 ही खुलेगा. आपकी क्लास वाला जो अपने स्कूल में जो है वो खुलेगा 3 या 4 दिन बाद. उसको देख के खोला जाएगा ना. So in our country, we follow an area based on the system of representation. The country is divided into different areas for the purpose of election. मतलब in the purpose of election, we divide the areas regarding the sense of votes. So according to their, if this place is related with what? If this place is related with whether this place is in rural areas or we can say the urban areas, so on that way these places are just they arranged. So the country is divided into different areas for the purpose of elections. These areas are called electoral. So the dividation regarding on the basis of election, so that's why these places are known as electoral constituencies. Electoral constituencies. Here, so now, then after, the voter who live in area elect one representative. और जो जितना एरिया है तो जो वोटर है वो अपने एरिया में एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है. अपॉइंट करता मतलब कि वो उसको रिप्रेजेंट करता है या उसको वो इलेक्ट करता है और वो जीत कर आता है. क्लियर? फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ लोकसभा. Yes, sir. लोकसभा Election. Yes, Lok Sabha election, the total number of constituencies Constituencies are 543. 3. In the later discussion, how these constituencies are in these terms and also reserved for some one of them, and these are the on the basis of ST, SC, ST. as well as in rural areas. These SC. areas
some areas are also reserved for the OBC, and even the some areas reserved for the female candidates. Clear? Yes, sir. Women. Yes, sir. Now, Yes, sir. the representative elected from each constituency is called the, so in Lok Sabha Member from of the, Parliament. yes, this is MP, member of Parliament, Parliament. in the sense of Lok Sabha. Parliament. Clear? So regarding सर लोकसभा के सीटें Yes, तो sir. 535 होती हैं। जो 535 होती हैं उसमें 12 जो लोग होते हैं Yes, sir. वो अलग होते हैं, जो जिनको नॉमिनेट करते हैं कौन? सब 45 Sir, two ना. President. प्रेसिडेंट नॉमिनेट दो को करते हैं। president. अपॉइंटेड होते हैं सर Sir, two ना होते हैं अलग. नहीं नहीं, टोटल 12 होते दो हैं। को president. मेरी बात समझिए। सर एंग्लो इंडियंस होते हैं ना वो Yes, दो sir. Yes, sir. Two होते हैं. तब 45, 500. हाँ, तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ जब जुड़ता है ये, तो टोटल नंबर जो आता है आपका 543 है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे। Yes. 545. 545 आता है सर। Yes, sir. तो उसमें two एंग्लो इंडियन होते हैं. जो आप ही लोग बता रहे हैं फिर, तो वही तो बता रहे हैं 545 है। अच्छा ठीक है, 545 आपने बताया, तो 545 में सर म्यूट शो कर दीजिए। ठीक है, जो 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं, तो टोटल 545 हो गया। Yes, sir. चलिए, now each constituency should have a roughly equal population living within it। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसको इस तरीके से बांटा जाता है, 543 है, तो उसके नंबर ऑफ बेसिस पे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिप्रेजेंटेशन को बांटा गया है, और उसकी पॉपुलेशन के बेस पे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो सिंप्लीफिकेशन बनता है। Then each state is divided into a specific number of assembly constituencies. Each state, तो ये तो मैंने बताया आपको लोकसभा का। जब स्टेट का होता है तो स्टेट को भी डिफरेंट वेज में असेंबली इलेक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस इट कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू assembly constituencies. Now, on the seats. In this case, the elected representative is called. So when you talk about this one is the MP. So when you talk about in the terms of assembly, which is also the part of Vidhan Sabha, assembly elections. So I will not route about the seats, because at every state the number is different. So that's why it is very difficult to write down all the number of that state. But you have to know that in the Lok Sabha, these persons are known by the name of MPs, and here these persons are known by the name of MLA, Member of Legislative Assemblies. Clear? Now, each parliamentary constituency has within its several assembly constituencies. Now, sometimes these constituencies are counted as seats. Simple है, ये constituencies ही seats होती हैं, allocation of the seats है, ये constituencies ही seats हैं. So these constituencies are counted as seats for each constituency represents on the seat in the assembly. Now, the sum, आप इसको खुद सभी चेक करेंगे कि कितनी सीट्स होती हैं, कितने लोग होते हैं. ठीक है, so this point is clear regarding the terms of electoral constituencies. So move to the another one. Yes, sir. Reserved constituencies. So little bit we discuss about this. When you talk about the reserve, इसमें कुछ पूछना है? No, sir. नो सर, नो सर, नो सर। क्योंकि इसमें स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स को आप लोग देख लेंगे.
स्टैटिक्स आपको Yes. मिल जाएगा, ठीक है. सो वी हैव टू मूव टू द अनदर पॉइंट, एंड दिस अनदर पॉइंट इज रिलेटेड विद रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. Reserved constituencies means fixed. Fixed in the terms of SC, ST, OBC, and whatever the female structure. If you see the panchayat election, so in every panchayat election, you've seen that the different interval at the different tenure, the seats comes according in the different way. So the constitution makers now, regarding in that sense, we have to understand that why the people who reserve the seats for some special one, we can say special one in the my sense that they are think, and these are the person who make these laws are known by the name of constitution makers. The constitution makers who make the laws. So the constitution makers now, they have great worry. They are deeply worried that, you know, it's okay when talk about this British India. So when talk about in the sense of British India, we don't have any power. Everything is governed by the Britishers. So, and according to their wish, they are doing this. That what they want. So what they want means in what manner they will govern our country and what they will do with the native Indians. So, but the main matter comes after 1947 when we will become freed. So when we'll become freed, in that sense, we have to know. We know that how we make a plan and in the next future, how this country will govern. So that's why when we talk about that the person who were depressed near about 5,000 years. So the constitution makers now understand, no, these person who were depressed by earlier 5,000 years, they should not again depressed, because if they depressed, our country will go in a back manner. So we have to, everyone have to go in that manner, in a parallel way. So अगर कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया है, so the person who, what, those who are at the back, it means for that whether they have to stop those person who are ahead or whether we have to jump that persons or something. So in that manner, they reserved the places, they reserved the constituencies. And in the sense that with the reserved constituencies for that specific that caste or the tribes, so our country will govern in a better manner or go forward. Those who were earlier trampled by the another one. Clear? आ रहा समझे? Yes, Yes, sir. sir. एक मिनट ये मैंने ये बताया, देखिए आजादी से पहले अब तक जो कास्टिज्म था, जो जातिवाद था,
तो जातिवाद के अंदर किस तरह से जो भी कह सकते हैं सवर्णों ने उनको जो भी दबाया हुआ था, तो जब उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क हुआ तो लोग जो थे, इंटेलेक्चुअल थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने सोचा कि ठीक है, अब से पहले जो हुआ सो हुआ, गलतियां जो हुई सो, बट आगे भविष्य में ना हो, और कुछ हम ऐसा करें कि उन लोगों के लिए भी बेनिफिट करे जो ट्रैम्पल्ड है और उनके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो पहले घर की कर गई है उसको उनके मन से हटाना चाहिए. सो दैट्स व्हाई in that sense they saved, or we can say in sense they reserved the seat for that specific one people. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So that's why from that समझ में आया सर. क्या नहीं समझ में आया बेटा जी, आप पहले बताइए क्या नाम है आपका? क्या नहीं समझ आइए, हम बताएं तभी तो बताएंगे हम कि क्या नहीं समझ आया. सर इनसिक्योरिटी, सर इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है पहले आप बताइए. पहले इनसिक्योरिटी का सिर्फ मीनिंग बता दीजिए, मैं सारा बता दूंगा. सिक्योर का इन लगाएंगे तो ऑपोजिट हो गया. सिक्योर का मतलब क्या है? सिक्योर का मतलब बचे हुए, हाँ सुरक्षित नहीं है. तो यहाँ पर ये ठीक है, सिक्योर का मतलब सुरक्षित, इनसिक्योर का मतलब असुरक्षित हो गया. हो गया. तो असुरक्षित है, तो असुरक्षित कहने का मतलब ये है कि आज से पहले, अब बहुत सारी फिल्में देखे होंगे, उसमें बताना नहीं है, उन फिल्मों में देखते होंगे कि किस तरह से हाउ द हाई कास्ट पीपल इन सेंस इन इट इज नॉट माय Yes, sir. हाउ द हाई सोसाइटी पीपल और द हाई कास्ट पीपल टेम्पल द लोअर कास्ट पीपल. द मेन थिंग इज जो उनको अपोज करते थे या क्रश करते थे. सो इन दैट सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने बताया बनाया, सो दे वांट दैट. I told you in the previous, the boys were not in that class. I told you in our country, in political terms, everyone is equal before the law. Yes, sir. कि कह सकते हैं राजनीतिक रूप से हर कोई समान है, because every person have the right to vote, and one person, one vote, one value. But it is, listen, but it is just on the papers, ठीक है. But if you see in the real sense in the society or in the social society, you know, still from where we have start in the sense of freedom, जब हम आजाद हुए उस समय से आज तक देख रहे हैं. मैं ये नहीं कहता हूँ, but still मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि the person who belong from that specific caste they are still trampled, but still mostly part are still living in a poverty way. ठीक है, जो उसमें से अमीर हो गया फिर अमीर पे अमीर होता गया, because they have the power to make the use of that. मतलब जो उसको सुविधा मिल रही है उसका वही यूज कर पाता है, बिकॉज उसके पास पैसे है, पढ़ लिख गया, और पढ़ लिख गया तो उसको फिर वो और पढ़ता ही गया, और in that sense. But those who don't have the money, so whatever the thing they will given by the government, it will not reach to them, because if they don't have the sufficient amount of whatever study, तो उनके पास जब तो ये है नहीं पढ़ने की सुविधाएं, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं. तो ये कहने का मतलब असुरक्षित का मतलब कि जब वो फ्रीड हुए तो फ्रीड होने के बावजूद भी उनके मन में कहीं ये घर कर गया कि हम चलो आजाद तो हो गए लेकिन हम अभी भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं है, उनको लगता था. तो सरकार ने सोचा या इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा नहीं कि हमको सिर्फ आजादी अंग्रेजों से मिल गई यही आजादी नहीं है, हमको रियल सेंस में इन सभी लोगों को आजाद कराना है. और किससे आजाद कराना है? फ्रॉम द क्रश और फ्रॉम द बर्डन ऑफ द Upper caste. upper caste. So if it will come, it will create a sense of security. तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आएगा जब उनके लिए कुछ चीजें रिजर्व होंगी. ठीक है. Yes, sir.
So that's why. Yes, sir. सर हाँ Yes, sir. सर ये तो उस समय के अनुसार रिजर्वेशन रखा गया था, अब तो गवर्नमेंट हटा सकती है। देखिए, डॉक्टर B.R. Ambedkar says that the reservation should be reserved only for 10 years. 10 years. But 10 years. in our country, we know the political drama. In our country, we know about the political drama and the political leaders. Listen, अब इस पे ध्यान से सुनते जाइए. But in our political drama, the political leaders use this in the sense of making the political casting their votes. कि राजनीतिक रूप से उनको वोट मिलते रहे, वोट बैंक की राजनीति है. Because from that period, देखिए 600, मैं ये नहीं कहता हूँ रिलीजन पर्पस, अगर ये सिंपल से सेंस समझ सकते हैं रिगार्डिंग द सेंस ऑफ नॉट दैट द रिलीजन पर्सपेक्टिव and the matter of Ram Janmabhoomi, it can be also solved earlier also, but the party should not want to solve this, because if this will be solved, on which basis they will do the politics? वो तो चाहते नहीं थे ना कि मैटर सुलझे, but in some senses it was solved. ठीक है? So that's why in the real sense this should, देखिए अगर हम सबको इतना इकोनॉमिक वे में अपलिफ्ट कर दें कि वो गरीब रहे ही नहीं, तो इस रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है. लेकिन हम उनको इकोनॉमिक वे में अपलिफ्ट नहीं करते हैं. अच्छा, अपलिफ्ट हुए भी हैं तो कुछ हुए हैं और उनको रियल सेंस में उसकी जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इट. For example, right now, from the last 6 months, the PDS system, public distribution system, and this is related with circulating the food items on the PDS. ठीक है ना? इससे पहले जो चल रहा है सारा Yes, sir. सिस्टम पहले भी था, लेकिन किस तरीके से अब है? Yes, sir. ठीक है, तो इकोनॉमिक वे में और पीडीएस सिस्टम में आप देखते हैं कि जिसको पीडीएस मिल रहा है, वो बुलेट से आता है लेने के लिए, वो फ्री में जो अनाज होता है. सर आपकी आवाज आपकी साउंड इको हो रही है. हाँ, थोड़ा आपकी रुकिए, साउंड इको हो रही है. आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आपकी आवाज सर किसी बंदे के फोन से इको हो रहा है. सर कोई 2 फोन से ज्वाइन किया है. हाँ सर, 2 फोन से. कोई 3 फोन से ज्वाइन किया है. एक ही पास किया है. और कोई रमिया दो. हेलो, अभी कर रहा है? यस सर. अभी भी कर रहा है? नो सर, अब नहीं कर रहे हैं. No, sir. सर अब नहीं हो रहा है. कर रहा है. ओके, सर सही है. चलिए. तो पीडीएस सिस्टम क्या मैंने बताया, पीडीएस सिस्टम को आप समझ सकते हैं. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, राजकीय सस्ते गल्ले की दुकान, जहां पर पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं जो 6 महीने फ्री मिल रहा है. इससे पहले भी जो मिलता था अनाज, तो जिसको मिलना, जो उसका पात्र है, उस पात्र को न मिलकर और जो मिलता है, तो वो भी पात्र नहीं हो, पात्र है. क्योंकि मैंने देखा है कि बाइक से लेने के लिए आते हैं और बुलेट से लेने के लिए आते हैं 2 रुपए किलो का चावल. तो इज इट अ रियल डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज द थिंग विच शुड बी गिवन टू द स्पेसिफिक and the person who deserve it, so they are not getting it.
the another make the benefit and the use of it. Clear? Yes, sir. So this one, this one, Yes, sir. और these are the leg points. So that's why उस बच्चे को समझाना था, वो बच्चा पूछ रहा था असुरक्षित, तो जो असुरक्षा का जो भाव था उन लोगों के अंदर था, तो उस असुरक्षा के भाव को सुरक्षा के भाव में बदलने के लिए they have make the reserved constituencies. Clear? Reserved constituencies का इलाका हमको इसमें समझ में नहीं आता है, because we are living in that areas. But if you visit to that tribal areas, so that in the tribal areas these are reserved for that specific persons, because you don't know about, if you read about this year the lesson was cut off, that this lesson was regarding this forest society and colonism in the history. So this system जो फॉरेस्ट सोसाइटी में वहां पे कैसे इंट्रोड्यूस किए, तो जब इंट्रोड्यूस किए तो वो लोग डीकूस थे, भाई आपको थोड़ा सेंस बता दे, तो डीकूस का मतलब कि बाहर के आउटसाइडर थे और वो आउटसाइडर वहां के लोगों पर कब्जा करते थे। तो आज भी उन इलाकों में बहुत कम डीकूस का मतलब आउटसाइडर हैं, बाहर के लोग हैं, लेकिन उनकी मोनोपोली उनकी मोनोपोली चलती है। सो दैट्स व्हाई that the monopoly should not be governed. So that's why the government reserved the constituencies in that areas, and these areas related with ST, or we can say SC areas, where the number of SC and ST is more. तो दोनों अलग अलग है, ST अलग अलग तो एकदम। दोनों का तो Yes. अरे भाई अलग है। सर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब जो जनजातियां Scheduled हैं, caste and scheduled tribe. शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का मतलब ये है कि वो जनजातियां जो जंगलों में निवास करती हैं अधिकतर, Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, भी sir. आपको कोई दिख जाता है एकदम, लेकिन बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये और भी इलाकों में कह सकते हैं, जो एमपी का है, कभी आप जाइए छत्तीसगढ़ इलाकों में, झारखंड के इलाकों में, तो आपको वहाँ पर ये कास्ट दिख जाएंगी। या आप क्लास 8 में जो यस सर। पढ़े होंगे ओराव और दुनिया भर की जो और ट्राइबल कास्ट यस सर, सब पढ़े हैं। पढ़े होंगे Yes, सब। यस सर पढ़ा। और एससी आपको दिख जाता है, क्योंकि इन दीज एरियाज दिस एससी वर लुक, ठीक है। as well as Yes, we had yes, talked sir. about when we talk about reserved constituencies, still the another caste also related this one is OBC, another backward Yes. caste. So the some sir. seats, Yes sir। so some seats are Other also, background caste. so अदर बैकवर्ड these कास्ट। seats are also reserved from the OBC, as well as the some for female candidates, Women. because in some areas you have seen these seats are even reserved for the female candidates, Yes. only female candidates। ग्राम में कभी ग्राम प्रधानी के इलेक्शन आता है, अलग बात है कि Yes, उसका sir, वर्क मेल करते हैं, लेकिन these seats are reserved for the female candidates। यस सर। सर जो फीमेल के रिजर्व सीट होता है सर, कहाँ किस मतलब किस चुनाव पे वो रिजर्व होता है? पंचायत वाले पे भी होता है, जो भी होगा पंचायत वाले में, कहीं कहीं सिर्फ महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित होती है, ग्राम प्रधान वाले में। आपको समझ, देखिए, हाँ मेरी बात सुनिए, आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि महिलाएं सिर्फ नाम के लिए खड़ी होती हैं, सारा वर्क पुरुष करते हैं, लेकिन वो सीट स्पेशली अगर मान लीजिए कि फिर महिलाओं को फिर खड़ा क्यों किया जाता है कि ग्राम प्रधान की पत्नी खड़ी हो रही है, तो अगर ऐसा है मान के चले तो फिर वहां पर फीमेल कैंडिडेट सीट ही रिजर्व है, ठीक है। कंपल्सरी, देखिए कंपल्सरी नहीं है, बदलता रहता है, कंपल्सरी नहीं है, बार बार बदलता रहता है। हाँ बार बार बदलता रहता है, क्योंकि इन आवर डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एवरीवन गेट द चांस। एग्जांपल, अगर जहां पर जनरल सीट्स हैं, जनरल के लिए सब खड़े हो सकते हैं, तो जनरल में एससी एसटी सभी खड़े होंगे, बट इफ द सीट इज रिजर्व्ड फॉर जस्ट द एससी कैंडिडेट, so only SC will stand, not the another caste, even the OBC will not stand. But when the general will come, the SC will stand, ST will stand, OBC will stand, everyone stand. Clear? Please don't make noise. Yes, sir. अब वो बच्चा जो था, भाई समझ में आ गया सुरक्षा का भाव। इसीलिए जब अपनी कंट्री फ्रीड हुई
तो सबसे पहले उनके मन में सुरक्षा का भाव, अरे भाई सिंपल सा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लेसन नंबर 2 when we talk about constitutional design. So when in the terms of South Africa, when the people were freed from the entanglement, the white man burden, so the white people also feared what will happen to them. But still the new constitution was made and everyone's right should be saved. That yes, whatever happened in the past, it will not occur in the future. Means the black will not seize the property of the white ones. So in that sense, it is also in the periphery in the sense of India also. So those castes जिनको दबाया गया, अब ये नहीं उनको उठाने के लिए इस तरह का प्रोविजन किया गया, ठीक है, वो तभी उठ सकती थी जब उनको एक कह सकते हैं कि सपोर्ट, तो ये एक तरह का सपोर्ट था जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, इट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट टू देम. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो सर. हाँ भाई, तो नो सर जो बोला है पूछिए क्या नो सर. सर बताया नहीं, हटाया जा सकता है नहीं रिजर्वेशन. अरे भाई रिजर्वेशन अगर हटाना होता तो लाया क्यों जाता? अब तो इक्वालिटी हो गया है ना. मैंने कहा अच्छा इक्वालिटी किस टर्म्स में है? इक्वालिटी मैंने कहा कि इक्वालिटी तब आएगी जब सब, मैं ये कहता हूं कि इक्वालिटी को छोड़िए, सोशल को छोड़ दीजिए, जाति पाति के स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए. अगर इक्वालिटी तो तब आएगी जब हर कोई इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगा, ठीक है. तो इकोनॉमिक अपलिफ्ट का सेंस समझ सकते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये सीट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व रखा गया, ठीक है. उनको अपलिफ्ट करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया गया, ठीक है, जहां पर ये ज्यादा है या ज्यादा कभी कभी समय के अनुसार आप गांव में भी देखते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम अलग अलग सीट्स का एलोकेशन होता है. कहीं एससी होता है, कहीं एसटी होता है, कहीं इवन ओबीसी होता है और कहीं फीमेल होता है, ठीक है. और जो देखिए जो आप जो कह रहे हैं वो जो सेंस जो है कि मैंने कहा कि 10 साल के अंदर तक ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में रखने की बात की गई थी, लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा के चलते आज तक बना हुआ है. बीच में हुआ था लेकिन लोगों ने कितना उसको अपोज किया. हेलो, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? Yes, कितना Yes, sir. Yes, sir. उपद्रव हुआ था, कितना हुल्ला हुआ था. तो ये एसेंस है, ठीक है. देखिए अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, बट आप कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्राई, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देन यू कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कांट. उसे समझने की कोशिश कीजिए. सिंपल सा है कि उनके मन में जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, उनके मन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग डालने के लिए इस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स किया गया, ठीक है. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर. देखिए इसीलिए मैंने कहा कि Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है उसमें सब बताएं. समय देखिए समय समय के अनुसार उसका परिवर्तन आवश्यक है. ये कंफर्म है कि जो कास्ट पिछले समय में जैसी थी आज की डेट में वैसी नहीं है. सो दैट्स व्हाई इन दैट सेंस इन द today's time you have seen the new system is EWS, and EWS is given to the general caste, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये जनरल कास्ट को मिला क्योंकि समय के अनुसार. अच्छा ऐसा थोड़ी है कि जनरल कास्ट में लोग गरीब नहीं है. तो दैट्स व्हाई फ्रॉम द गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टूड एंड दे मेक द न्यू प्रोविजन रिगार्डिंग इन द सेंस ऑफ EWS, ठीक है. सर Yes, फुल sir. नेम ऑफ EWS. So EWS का फुल फॉर्म बताइए फिर से. The full form of Economically weaker EWS is economically weaker section. इसके अंदर मोस्टली जो कास्ट इंक्लूड होती है, Backward class. नहीं बैकवर्ड क्लास नहीं,
इकोनॉमिकली W फॉर वीकर Weaker सेक्शंस, section. इकोनॉमिकली Weaker क्या नहीं section. है, Economically weaker. ये न्यू है। आर्थिक आप कभी स्थिति से जन सेवा कमजोर। केंद्र पे जाइए उसमें और कोई पता जा कीजिए सकता है ना, तो ईडब्ल्यूएस का कागज बनता है। यस सर। भी आ सकता है ना। और ये Yes, sir. जनरल कास्ट के लोगों के लिए है, हाँ, और कास्ट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। GST नहीं आएगा। नहीं, SC ST को तो ऑलरेडी रिजर्वेशन कैटेगरी में बेटा, ये उनके लिए नहीं बना है। जो जनरल कास्ट से हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये उनके लिए। लेकिन आप जानते हैं हर जगह उसका मिसयूज होता है, और यहाँ भी मिसयूज लोग करते हैं, बनवा लेते हैं लोग। Yes, sir. इलेक्शन में सर जनरल में SC ST उठ सकते हैं, क्या लड़ चीज? सकते हैं। हाँ देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि इफ द सीट इज रिजर्व्ड फॉर जनरल, so in that category everyone can stand in election, but if the seat is reserved for the SC, so only SC will stand, and if the seat is reserved for the ST, only ST will stand. yes. तो यहाँ पे तब क्यों नहीं हो सकता है जनरल में? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर। नहीं यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? सैफ, क्या नाम है तुम्हारा? कैफ अंसारी। यस सर। हाँ, तो क्या क्या पूछना चाहते हैं? आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है आपका। सर EWS में सर जनरल है तो उसमें चुनाव की तरह SC ST नहीं आ सकता है। नहीं बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। SC ST को अगर वो EWS में आएंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो SC ST में मिल रहा है उनको। तो वो आना नहीं चाहते हैं, उनके पास नहीं कोई तो- दबाव नहीं है आने। नहीं वो आना क्या चाहते हैं, उनको मिलेगा ही नहीं। वो खुद ही उसका इतना बेनिफिट उठाते हैं। आपको पता है जो टोटल जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है वो 49.5 है। इंडिया में 49.5 तो रिजर्वेशन है, 49.5। बाकी 51.5 में जनरल है, जनरल कास्ट है। और इसमें भी अगर कहीं मेरिट आता है कहीं जॉब के पर्पज से तो वो की सीट तो कंफर्म है। लेकिन दिस कास्ट रिजर्व कर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द सीट ऑफ दैट जनरल कास्ट आल्सो, सो दैट्स व्हाई द समथिंग इज रिजर्व्ड फॉर द EWS। सर नहीं है। आवाज नहीं समझ आ रही आपकी? हेलो, पता नहीं कौन बोल रहा था। चलिए, तो आज वैसे भी टाइम हो गया है और ये हम बता दिए आपको। समझ में आया होगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that happens. Our parliament and assemblies would have the deprived voice of the significant section of the population. So the makers सर of हिस्ट्री में बस फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म भी बस रिड्यूस नहीं। हुआ है। वो हाँ, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटिन्यूसली 4 लेसन है रिगार्डिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अनदर वन इज रशियन रेवोल्यूशन, नेक्स्ट वन इज Russian Revolution. Hitler. Nazism and Hitler. Revolution. Only that lesson will come. Nazism and the rise of Hitler. Yes, Nazism and the rise of. So only the 3 lessons in our syllabus, in which 2 lessons we have completed from our Yes, syllabus. sir. Yes, From our sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So 1 minute is left. So regarding in this, since you have a doubt, you can ask. So we have discussed about the electoral constituencies and the reserved constituencies. Because if you read, you will find out. अब पढ़े चाहे जनरली मैंने आपको सारा बता दिया, समझा दिया। फिर सीट का जो एलोकेशन है, फिर सीट्स को लेकर लोकसभा के अंदर जो सीट्स का एलोकेशन है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है। दिस इज फॉर द 47. एंड दिस How many chapters in economics has been completed, sir? 2 chapters have been completed. How many chapters in economics has been completed, sir? Right now we have completed 2, and according to the syllabus 3 will come. So we have completed 60 to 70% portion of that syllabus. Yes, sir. I will